مسجد کی جب جب یاد آتی ہے، شہادت بابری مسجد کی جب جب یاد آتی ہے، ہماری دھڑکنوں کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ مسلمانوں نے اس کو پیار الفت سے بنایا تھا، مسلمانوں نے اس کو پیار الفت سے بنایا تھا۔ حکومت ساز سے کہہ کے مگر اس کو گراتی ہے، ہمناتی ہے۔ ہماری بابری مسجد کو ڈھایا ظالموں نے، جب ہمیں ظلم و ستم کی وہ گھڑی بے حد ستاتی ہے۔ خطا بے شک ہماری ہے کہ مسجد چھن گئی ہم سے، خطا بے شک ہماری ہے کہ مسجد چھن گئی ہم سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاروبار خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ کہاں پڑھتے؟ مدرسہ اسلام المسلمین رحمت پور میں۔ ماشاء اللہ۔ ہم آپ سے سیرت کے متعلق سے کچھ چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کا اجازت ہے؟ جی کیجیے انشاءاللہ۔ ہم سب کس کے امتی ہیں؟ ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ کہاں؟ مکہ مکرمہ عرب میں ہے۔ عرب کس ملک کی طرف میں؟ عرب ایک ملک ہے پچھم کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینہ کس سال میں پیدا ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 9 ربیع الاول کو سن 51 کو پیدا ہوئے تھے، 20 سے 22 اپریل کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن اور کس وقت پیدا ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی اور نانی کا نام کیا تھے؟ کس خاندان سے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ اور نانی کا نام برا تھا اور قریش سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ برادری کا نام کیا تھا؟ قریش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھائی بہن تھے یا نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھائی بہن نہیں تھے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ سوال کے جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صدر محترم اور دینی بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے رمضان المبارک اور ہماری ذمہ داریاں۔ بہت جلد رمضان کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید لوح محفوظ آسمان سے دنیا میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا روشن نشانیاں رکھتا ہے۔ اس مقدس مہینے کا ایک مخصوص عبادت ہے روزہ، جس کا مقصد اللہ کے بندوں کے اندر اس کا خوف پیدا کرنا ہے۔ فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تم پر بھی کیا جا رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے مخفی کر رکھا ہے، اور حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الصوم
सयामू ली व अना अज़्ज़ी बिही, रोजा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। रोजेदार का मकाम मर्तबा तो देखो कि हदीस के अंदर वारिद है कि रोजेदार के लिए जन्नत में एक मखसूस दरवाजा होगा जिसका नाम रैयान होगा। और क्यों ना होगा कि रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को होता है, यह रोजा रखने वाले इंसान को होता है। दूसरे इसमें अपने नफ्स पर बड़ा काबू रखना पड़ता है कि खाने पीने की चीजें सामने रखी होती है, फिर भी रोजा रखने वाला बंदा हाथ भी नहीं लगाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उमीरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। सदर मोहतरम और अजीज साथियों और मेरी बहनों, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है इखलास की अहमियत। इस्लाम में इबादत को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को अंजाम देने का हुक्म दिया गया है। नमाज हो या रोजा, ज़कात हो या हर किसी इबादत, अगर हमारी नियत अल्लाह को खुश करने के बजाय कुछ और है तो हमारे लिए इबादत ना बेकार साबित होगी, बल्कि उल्टा हमारे लिए औबार बन जाएगी। मसलन अखरत की ना हो तो वह बेकार है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना अन सलातिहिम साहुन अल्लज़ीना हुम युराऊन। ऐसे नमाज़ियों के लिए हान है, बर्बादी है जो अपने नमाज से गाफिल होते हैं, जो दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। कल क़यामत के दिन सबसे पहले अपनी नेमतें याद कराएगा और वह याद भी कर लेगा कि अल्लाह ताला कहेगा, तूने मैं तेरे राह में लड़ते रहा, बहादुर कहे, और दुनिया में तुझे बहादुर कहा भी गया। फिर अल्लाह ताला उस शख्स को लाया जाएगा जिसने दीन इल्म सीखा सिखाया, कुरान का कारी था। अल्लाह ताला उसे भी अपनी नेमतें याद कराने की बात कहेगा, तूने इन नेमतों के जरिए क्या किया? कहेगा, मैंने तू झूठ बोल रहा है, तू ये सब चीज को इसलिए किया ताकि दुनिया तुझे आलिम और कारी कहे, और दुनिया में तुझे आलिम और कारी कहा तुझे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला उस शख्स को लाया जाएगा जिसे खुशहाली से नवाजा था, माल दौलत की फरावनी अता की थी। अल्लाह ताला उसे भी अपनी नेमतें याद कराएगा और वो भी याद कर लेगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा, तूने इन नेमतों के जरिए क्या हासिल किया ताकि दुनिया तुझे सखी कहे, और दुनिया में तुझे सखी कहा भी गया। फिर अल्लाह ताला उसके बारे में भी फरिश्तों को हुक्म देगा और उसे भी घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक काम इखलास नियत के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूँ रेशम खातून और आप देख रहे हैं मुनज़्ज़र कर न्यूज। आज हम आए हैं रघुनाथपुर। आइए, एक सहेली मिली है, बहुत पढ़ी लिखी है। आइए कुछ से पूछते हैं। नात आता है आपको? जी आता है। तकरीर? जी। तकरीर बोलिए। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे दीनी प्याले इस्लामी भाइयों, आप लोगों के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहती हूँ। उसका उन्वान है हिजरत मदीना। जब कुरैश के लोगों को मालूम हुआ कि यसरफ मदीना वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार और साथी बन गए और मुसलमानों के लिए एक बड़े इत्मीनान का ठिकाना मिल गया, तो ये फिक्रमंद हुए और सोचा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ से निकल गए तो फिर ये लोग वहाँ इकट्ठे होकर अपनी कुव्वत मजबूत कर लेंगे, और जब ताकत रह जाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि हमारे ऊपर चढ़ाई करे। इसलिए मुख्तलिफ खानदान, इन और कबीला के बड़े बड़े सरदार और अक्लमंद लोग एक मकाम पर जमा हुए। उस मकाम का नाम दारुन नदवा था। जब किसी बड़े मामला पर गौर करना होता था तो यहाँ जमा हुआ करते थे। मामला पेश हुआ, लोगों ने मुख्तलिफ राय दी। किसी ने कहा कि मोहम्मद को जंजीरों में बांध कर घर में बंद कर दो। किसी ने कहा कि इनको यहाँ से किसी दूर मुल्क की तरफ निकाल दिया जाए। अबू जहल ने कहा कि सब कबीला से एक एक आदमी लिया जाए और वह सब मिलकर एक साथ मोहम्मद पर हमला करे ताकि इनकी खून की जिम्मेदारी सब कबीलों पर आ जाए। तो बनी हाशिम जो मोहम्मद की हिमायत करते हैं, इतने कबीलों से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। उस बात पर इत्तफाक हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी खबर मिल गई। आप अल्लाह के हुक्म से यहाँ से मदीना जाने की तैयारी में मसरूफ हो गए। पहले अपने खास दोस्तों और साथी हज़रत अबू बकर को अपने उस इरादे की खबर दी। फिर हज़रत अली को समझाया कि मेरे पास मक्का की फला फला की अमानतें रखी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम क्या है आपका? सवेरा खातून। इतना कैसे मालूम है आपको? मदरसा में पढ़ी हूँ। कौन पढ़ाया था? हाफिज साहब ने। सबको पढ़ा? जी सबको। हाफिज साहब का क्या नाम? अहमद। अहमद?
अहमद अंसारी। अंसारी। यहाँ जो प्रोग्राम हुआ था वो कितना लड़कियाँ थी? शायद 205 या 10। लड़का प्रोग्राम था या फिर लड़की का? लड़की का था। लड़का का नहीं? नहीं, उसका सवाल जवाब था। सवाल जवाब था। और नजम। इस्लामी भाइयों, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश फरमाना चाहती हूँ। उसका उन्वान है नमाज की अहमियत। अगर कोई आपसे सवाल करे कि वह कौन सी चीज है जो सरवरे कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वह कौन सी चीज है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वह कौन सी चीज है जो इस्लाम के बुनियादी पांच अरकान में है, तौहीद के बाद दूसरा अहम रकान है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वह किस नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज्यादा मुकम्मल कराया है। ये नमाज है जो मोमिन की तरफ है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। यही वो नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज्यादा मुकम्मल कराया है। ये नमाज है जिसके मोमिन के जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज्यादा मुकम्मल कराया है। कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्नहा लकबीरतुन इला अलल खाशिईन। सबर और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। बैगिना रोशनी और बैगिना शिर्क व कुफ्र तरकी सलाती आदमी और शरीक कुफर के दरमियान फर्क करने वाला चीज नमाज है। ये नमाज है जो मोमिन की तरह से, ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है, जिसके बारे में अल्लाह ऐसा फरमाती है इज़ा हाज़ा अमरु फला यमिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदरे मोहतरम और दीनी भाइयों, मैं जिस मौजू लेकर हाजिर हुई हूँ उसका अनुमान है तौहीद और उसकी अहमियत। क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सी चीज है किसी को उसके लिए अल्लाह ताला ने जमीन पर बेशुमार नबियों और रसूलों को माबूद फरमाया है? वह कौन सी चीज है जो दीन इस्लाम के रूह है? वह कौन सी चीज है जिसके जिक्र से कुरान करीम भरा पड़ा है? वह कौन सी दौलत है जिसको हासिल करने के लिए हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा ने शर्मनाक तरीके से शहीद हो जाने का गवारा कर लिया, मगर उस दौलत से हाथ नहीं धोया? वह कौन सी चीज है जिसके लिए सहाबा कराम ने इस कदर तकलीफें उठाई? जी हाँ मेरे भाइयों, वह चीज है तौहीद। वह तौहीद की दौलत है। दुनिया में जितने नबी और रसूल आए सबके पास बात का सिर्फ एक मकसद था कि अल्लाह के बंदे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करें। मेरे भाइयों, तौहीद का मतलब होता है एक करना, और शरीयत में तौहीद को मानना यह है कि अल्लाह की इबादत में और रबूबियत में और उसके तमाम आसमा व सिफात में यकीदा मान जाना। अगर इसके अलावा किसी को रब माने जाते तो ये भी तौहीद के खिलाफ है। इसके अलावा किसी को इबादत किए जाते तो ये भी तौहीद के खिलाफ है, जिसमें वह अल्लाह के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी और के लिए इस्तेमाल किया जाता तो ये भी तौहीद के खिलाफ है। मेरे भाइयों, मुसलमानों की तारीख गवाह यह है कि जब तक उनके सीनों में तौहीद के दौलत थे, यह जमाना सरफराज थे, सहाबी आरजू थे, लेकिन जब तौहीद को छोड़कर मुसलमान मिस्र के गलाजतों में मुब्तला हो गए, इस दिन से ज़ाल की कहानी शुरू हो गई। आला में अकबर ने कहा था कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा है। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिर्फ अखलास के साथ साथ अल्लाह के लिए करो। अगर दिखाने के लिए कोई भी अमल करता हो तो वो काबिल कबूल नहीं है। अगर दिखाने के लिए कोई अमल करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जहन्नम के अंदर फेंक देता है। यही वजह है हमारी इस बच्ची ने तीन ऐसी बातें बताई जो कहा तीन ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुलाएगा, है कि नहीं? आलिम को, मालो दौलत वालों को, सभी को उनको अपनी नेमत को याद दिलाएगा। वो कहेगा बताओ तो हमने तुमको नेमत दे रखी
थी उनको तुमने क्या किया। वो आदमी कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तेरी राह में खर्च कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तेरे राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन। और कहते हो तब है ये वादा, अगर तुम सच्चे हो नहीं देखोगे मगर एक दर्शनाक आवाज जो इन्हें आप पकड़ेंगे और आपस में झगड़ रहे होंगे, फिर ना कोई वसीयत होगी ना कोई अपने घरों को वापस जा सकेंगे। क़यामत का मंजर बुरा होलंग होगा, कायनात दहम बहम हो जाएगी, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, आसमान जमीन सूरज चांद सितारे सब टूट फूट जाएगी, हर से ही पुरखना तारी हो जाएगी और एक जात वाहिद मालिकुल अर्ज़ व समावाति के सिवा कोई बाकी ना रहेगा। लोग अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला एक बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन इसको देखोगे भूल जाएंगे हर दूध पिलाने वाले अपने दूध पिलाए को और डाल देंगे हर अमल वाले अपने अमल, और तो देखोगे लोगों का नशा और हकीकत में वो नशा ना होगा लेकिन अल्लाह का आज़ाब सख्त है। फिर दोबारा सुर फूंका जाएगा, सब जिंदा होकर मैदान हश्र की तरफ चल पड़ेंगे। वनूफिका फिस्सूरि फइज़ा हुम मिनल अज़दाज़ि इला रब्बिहिम यंसिलून, और दोबारा सुर फूंका जाएगा और अचानक वो कब्रों से अपनी रब की तरफ फिर पड़ेंगे। कब्रों से निकल कर मैदान हश्र में जमा होने वाले किस हाल में होंगे, बिल्कुल नंगे, जिस्म पर लिबास ना तो कोई चीज ना होगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तो बड़ी शर्म आएगी, सब एक दूसरे को देखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुरूना बाज़ुहुम इला बाज़िहिम, वहाँ एक दूसरे को देखने की फुर्सत कहाँ होगी, मामला उससे कहीं ज्यादा सख्त होगा कि लोग एक दूसरे को देखेंगे। सूरज बहुत नजदीक आ जाएगा, उसकी गर्मी और तेज से लोग बदहोश और परेशान होंगे, पसीने में शराबो होंगे, लोग अपने अपने अमाल मुकदार पसीने में गर्क होंगे, कोई टुकड़ों तक पसीने में होगा, कोई घुटनों तक पसीने में होगा, कोई कमर तक डूबा हुआ होगा और कोई मुंह तक। मैदानी हश्र में लाए जाने वाले तीन तरह के लोग होंगे, कुछ पैदल लाए जाएंगे, कुछ सवारी और कुछ मुंह के बल। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंह के बल कैसे चलेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जात ने कदमों के बल चलाया है वही जात ने मुंह के बल भी चलाने पर काबिल है। मैदानी हश्र इसलिए कायम होगा ताकि इंसानों के अमाल का हिसाब हो कि किसने दुनिया में कितने नेक अमल किए, कितने बुरे, क्या नेकी की क्या बुराई। नेकी करने वालों को नेकी का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और बुराई करने वालों को बुराई का पूरा पूरा बदला मिलेगा। किसी के साथ नाइंसाफी ना होगी, किसी पर जुल्म और ज्यादती नहीं होगी। आज किसी पर कोई जुल्म न होगा और जो तुम लोग करते थे बस उसी का बदला दिए जाओगे। हर शख्स अपनी फिक्र में होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। रिश्तेदार अगरा भी मुंह बोल लेंगे। वो लोग जो दुनियावी जिंदगी में एक दूसरे के हमदर्द मौत और गम का काम होते थे वो भी साथ छोड़ देंगे, अपने करीब भी न आने देंगे और एक दूसरे से भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानिन युग़नीह। जिस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, अपने माँ बाप से भागेगा, अपने बीवी और अपने औलाद से भागेगा, उनमें से हर एक की इसमें ऐसी हालात होगी, दूसरे से बेनियाज कर देंगे, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, अपने पराए हो जाएंगे और एक दूसरे से यूं भागेगा जैसे कभी कोई जान पहचान ही नहीं हो। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे सिवाय मुत्तकियों की, यानी मुत्तकी और परहेजगारों की दोस्ती उस दिन भी कायम रहेगा। लेकिन मनमानी जिंदगी गुजारने वाले एक दूसरे के दुश्मन नजर आएंगे, एक दूसरे के दुश्मन नजरों से छिपे फिरेंगे। मुद्दा कोई नेकी ना मांग दे, कोई मदद का मुताला न कर दे, वहाँ अपने अमल का खुद जवाब होगा। दुनियावी सिफारिश और खुशामद का कोई गुजरना होगा। इंसानों का एक खाटे मारता समंदर होगा। हर इंसान की तमाम आगरा, वो रिश्तेदार, सारे दोस्त व अहबाब, सारी चाहते, दुलारे, प्यारे सब मौजूद होंगे, मगर फिर भी इंसान को अकेला तन्हा महसूस होगा। अजीब चीज है ए दोस्त आलमी महशर, अजीब चीज है ए दोस्त आलमी महशर, बड़ा हुजूम में फिर भी है हर बशर तन्हा। जब हिसाब किताब होगा तो इंसान झूठ बोलेगा, अपने बुराइयों को छिपाएगा, अपने गुनाहों का इनकार करेगा। अल्लाह ताला उनके अमाल नामा पे
कर देंगे। देखो ये है तुम्हारे करतूत जो तुमने दुनिया में किए और मेरे फरिश्तों ने लिखे हैं। अगर उनका भी इनकार करेगा तो जमीन से गवाही दिलवाई जाएगी। इरशाद बारी हो अखबारहा, उस रोज जमीन अपनी खबरी बयान कर देगी। जमीन की गवाही पर भी अगर वह चुप ना हुआ तो उनके मुंह पर मोहर लगाकर उसके आधा से गवाही ली जाएगी। हदीस में है कि गोश्त गवाही देगा, हड्डी गवाही देगी, हाथ पैर गवाही देंगे, रान गवाही देगी और ये सारी गवाहियां इंसान के खिलाफ होंगे। सारे आधा बताएंगे इस शख्स ने किस दिन किस वजू से कौन सा गुनाह किया था। इंसान बदहोश हो उठेगा और कहेगा मैं तुम्हें बचाने के लिए गुनाहों का इनकार करता रहा और तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो, मगर मैदानी हश्र उसके आधा उसके काबू में नहीं होगा। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे, उनके हाथ हमसे गुलाम करेगा और उनके पांव उनके कामों का हिसाब देंगे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैदानी हश्र में बदहोशी का ये आलम हर किसी के साथ ना होगा। अल्लाह के कुछ बंदे मैदानी हश्र में बिल्कुल परेशान हाल ना होंगे, उनका हिसाब किताब भी आसानी से हो जाएगा और जन्नत में दाखिला की इजाजत भी मिल जाएंगे।